آج کے پروگرام میں کیلوں کے ذریعے جادو کا طریقہ بتا رہا ہوں اور اس کا توڑ بھی بتا رہا ہوں۔ میرے پاس کیل ہے، پھر اس کے سے کچھ کم سائز کے کیل ہے، پھر اس سے کچھ کم، پھر اس سے کچھ کم، اور پھر اس سے کچھ کم۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اس چیز کو کیل دیا جائے، ہم نے اس کو کیل دیا۔ کیلوں کا سب سے پہلا عمل جو بتاتا ہوں، ہمیشہ کیل جو ہے کتے کی، خنزیر کی اور گدھے کی کھوپڑی میں ٹھوکے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت میرے پاس کھوپڑی پڑی ہے، یہ اونٹ کی ہے، یہ بھی اونٹ ہے، اور یہ بھی اونٹ ہے، اور یہ بھی اونٹ۔ اونٹ کا پورا ڈھانچہ ہے، آپ دیکھیں اس کا منہ پورا، اس کا پورا منہ ہے اونٹ کا، آپ دیکھیں یہ اونٹ کا منہ ہے۔ محدثین نے جو اپنے مشاہدات اور تجربات میں لکھا ہے، جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے جادو اثر نہیں کرتا، جنات وہاں نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتے۔ میرے پاس اس کے مشاہدات ہیں۔ اگر آپ نے ان مشاہدات کو سمجھنا ہے اور پانا ہے تو ہمارے اکابر پر اعتماد جو پیج ہے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا بہت ریفرنس ملے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو حوالے سے پیش کروں، ریفرنس سے پیش کروں، اور حوالے سے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کیل ٹھوکے جاتے ہیں، لیکن ان کیل پہ پڑھا جاتا ہے اور کالا علم پڑھا جاتا ہے، اور جب یہ ٹھوکے جاتے ہیں تو اس بندے کے دماغ میں، عقل میں کوئی چیز نہیں رہتی، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کسی چیز میں کیل ٹھوکیں اور وہ ہر چیز جڑ جاتی ہے، دو لکڑیوں کے درمیان میں کیل ٹھوکیں تو آپس میں جڑ جاتے ہیں، ایسی اس کی قسمت، اس کی مقدر، اس کا نصیب اور زندگی کا نظام، یہ آپس میں ایسے یکجا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ کھوپڑی پر کیل کا عمل افریقہ میں زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے اس یہ جادو، اور اس جادو کی جو ہے طاقت ہے بہت زیادہ، یاد رکھیے گا۔ لفظ تاثیر رکھتا ہے، وہ گالی ہے، لفظ ہے، گالی لفظ ہے، اور میٹھے بول لفظ ہیں تو تاثیر رکھتے ہیں۔ آپ گالی کہیں تو آگ لگ جاتی ہے، گالی سے آگ لگ جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا اثر ہے، اور گالی میٹھے بول ہوں تو اندر ٹھنڈک پڑ جاتی ہے تو معلوم ہوا اس کا بھی اثر ہے۔ یاد رکھیے گا، جب دور جہالت ہوگا، چاہے وہ جتنی اعلیٰ ڈگریاں ہوں، اسے ہم دور جہالت کہیں گے۔ جب کملی والے کی محبتیں اور نور معرفت نہیں ہوگا تو پھر حسد کا دور ہوگا، اور آخری درجے کا حسد ہوگا، اور اس حسد کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا وار کیا جائے گا جس کو جادو کہتے ہیں۔ جادو واحد وار ہے، نہ کیا کا پتہ، نہ کرنے والے کا پتہ، نہ ہوئے کا پتہ، لیکن ہو جاتا ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی بہت بڑی ہستیاں نہیں ہیں، اللہ کے حبیب پہ ہوا اور بالوں پہ ہوا۔ تو یہ کیل جس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کیل ٹھوکے جاتے ہیں اور ان پہ کچھ پڑھا جاتا ہے۔ تازہ کھوپڑی میں ٹھوکے جاتے ہیں جس میں بھیجا ہوتا ہے، وہ خنزیر کی، وہ کتے کی، وہ گدھے کی۔ اس کے بعد پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب اتنا موٹا کیل گلتے تو وقت لگے گا، زمین میں زہر ہے، اس کو گلتے وقت لگے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی 70-80 سال تو اس کے یہ نہیں، اتنا جلدی نہیں جاتا، یہ اس کو گلتے، اس کو ختم ہوتے وقت لگے گا۔ کھوپڑی ختم ہو جائے گی، 2-4 سال میں ختم ہو جائے گی، لیکن کیل اس کے اندر رہے گا۔ میرے پاس بارہا کیس، بے شمار کیس آئے ہیں، چونکہ یہ حلال جانور ہے اونٹ، اور اونٹ کی ہڈی کے اپنے کمالات اور فیوز و برکات ہیں، اس لیے میں کھوپڑی لایا ہوں آپ کو صرف ایک نمونہ دکھانے کے لیے۔
कि ऊंट की हड्डी की खोपड़ी इसी तरह अगर कुत्ते की खोपड़ी हो, खिंजीर की हो, सुअर की हो, और गधे की हो, और बंदर की हो। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने बकायदा बंदर लिया, फिर उसे नशा दिया, फिर एक ही वार में उसकी खोपड़ी तन से जुदा की, बाकी को गड्ढा खोद के दफन कर दिया। और मेरे पास एक शख्स थे, वो आए और कहने लगे कि ये चीज मुझे दे दे और ये खोपड़ी दे। और इस खोपड़ी को फिर उन्होंने जो है कहा कि फिर उसके अंदर कील ठोंके। अब केस क्या था, जरा केस की नौयत थोड़ी सी सुन ले। दो भाइयों ने आपस में एक कारोबार किया, चलते रहे, औलाद जवान हो गई। अब वो कहने लगे बड़ा भाई कि हम क्या कारोबार तकसीम ना कर लें, ताकि औलाद जवान है, आपस में कोई झगड़ा इख्तलाफ ना हो, हम प्यार मोहब्बत से रहें। तकसीम हो जाएंगे तो प्यार मोहब्बत से रहते रहेंगे। छोटे भाई की नीयत में कुछ थोड़ा सी कमी बेशी थी। उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, खुद ही हिस्से किए, 2 हिस्से किए और खुद ही चुन लिया। हालांकि एक हिस्सा करता है जायदाद का कि भाई ये 2 हिस्से हैं, मैंने हिस्से किए, आप चुन ले कोई एक। खुद ही हिस्सा किया, खुद ही चुन लिया, और जो जितना अच्छी चीजें थी जायदाद की वो सारी चुन ली, और जितनी बाकी थी वो इसको दे दी। इसने जब एहतजाज किया तो फिर ये उसने इसके ऊपर पड़ी का जादू किया, और ऐसा खतरनाक जादू किया, ऐसा कहरनाक जादू किया कि आप उस जादू को सोच नहीं सकते कि वो जादू कितना खतरनाक था। मुझसे वो साहब कहने लगे कि मेरे घर में रोटी पड़ी पड़ी कीड़े पड़ जाते हैं, सालन कीड़े पड़ जाते हैं, कपड़े खुद बहुत सुराख हो जाते हैं और कट जाते हैं, और चीजें खत्म हो जाती हैं। और जब मैंने उन्हें बताया सूरत वस्समाए वत्तारिक इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवाइदा, जब ये मैंने अमल बताया और मैंने उनसे अर्ज किया कि कीलों का तोड़ कीलों से होगा, 4 दरमियाने साइज की कील ले, ये 4, और हर कील के ऊपर 41 बार पढ़े इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा वमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवाइदा, 41 बार पढ़ लें। एक छोटी सी वजाहत अर्ज करूंगा। अक्सर क्या करते हैं, खुद पढ़े हुए होते हैं या थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लोगों से पढ़वाते हैं। अमल के अंदर जज्बा और खुलूस मुंतकिल होता है, याद रखिएगा। पैसे दे के अमल करवाना, ना वो जज्बा होता है, ना वो खुलूस होता है, ना वो तासीर होती है। क्यों शरीयत ने फरमाया कि तेरा अगर वालिद मरा है और तू अगर जानता है अहल है तो अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ा। जो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो किसी कोई और नहीं मांग सकता। तो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो कोई और नहीं मांग सकता। मैं फिर ये अमल बताऊंगा। अगर किसी को शक है और यकीन है कि उसके ऊपर कीलों का अमल है और उसको कील दिया गया है, और कील का दूसरे लफ्जों में मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा बंदिश, कि जिंदगी के हर मामले में बंदिश है, और जिंदगी का हर मामला बंदिशों में है। वो रिस्क है, वो रिश्ते हैं, वो सेहत है, वो जिंदगी की नाकामियां और कदम कदम पे नाकामियां, मसाइल, मुश्किलात, उलझने। अगर जिंदगी इन्हीं चीजों में आ गई है तो फिर आप खामोशी से एक काम करें, 4 कील ले ले, 4 कील, और 4 कील लेकर इनके हर कील के ऊपर इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवाइदा, सूरत वस्समाए वत्तारिक, और 30वां पारा। ये 40 बार पढ़े। 41 बार इसलिए होता है कि अगर कोई एक आध कमी रह जाए तो वो उसको पूरा कर लेते। असल अदद 40 है। तो अवल आखिर दरूद पाक। इन कीलों को आप चाहें
घर के कोनों में दबा दे, ठोक दे, नहीं तो घर के चारों कोनों में, कहीं फर्श में, जमीन में, क्यारी में, कहीं इसको नीचे गाड़ दे। अच्छा, एक चीज और है, ये तजर्बे में आई है, और वो ये आई है कि 3 कील गाड़े, एक ना गाड़े, और रात का मौका दे उन्हें। कुछ चीजें जो हैं, जो आपस में जिन जन्नाती शैतानी जादुई चीजें, उसको निकलने का मौका दे, क्योंकि इस्लाम किसी चीज को बंद करके मारने का मौका नहीं देता। सांप है तो उसको भागने का मौका दो, मारो, वो चीजें बंद हो जाएंगी और मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जल जाएंगी। 1 कील छोड़ दें आप और रात का मौका दें, सुबह उठ के फिर इस 1 कील को दबा दें। यह पहला अमल है जो मैं कीलों का बता रहा हूं, जो खोपड़ी पे होता है और जिसकी वजह से मैंने बेशुमार घरों में बर्बादियां देखी, रिश्तों में, रिस्क में, सेहत में, और नाकामियां और मुश्किलात और मसाइल, और जिंदगी में मैंने बर्बादी से, इससे बड़ी बर्बादी नहीं देखी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अमूमन ये होता है कि कीले लें, हम आपको दम कर देंगे, आप घर में जाके लगा दें। मैं ये चाह रहा हूं कि अल्लाह के हबीब मेरे आका कमली वाले की बारगाह में कोई भी शख्स आया हो, हुजूर ने उसे अमल पे लगाया है, अमल पे लगाया है। मैं नहीं चाहता कि जो अमानतें मेरे पास हैं वो मैं छोड़ के चला जाऊं, बल्कि हर अमानत आपके सपुर्द कर दूं कि आप खुद करें। फिर वही बात है, दर्द दुख आपका है, जो आप जिस दर्द दुख से, आप जिस गम से ये अमल करेंगे, और कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई मुखलिस हो, कोई मुखलिस हो, होते हैं। ये एक पहला अमल मैंने बताया है, जो कि कुत्ते की खोपड़ी, खिंजीर की खोपड़ी, गधे की खोपड़ी और बंदर की खोपड़ी पे होता है, और फिर उस पे डाल के उसको दबा दिया जाता है और जिंदगी बर्बाद होती है। एक साहब मेरे पास आए, आके कहने लगे कि ऐसे ऐसे है। मेरे इस्तिखारे में आया, अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं। मैंने कहा कि आपके ऊपर लगता है कि कोई खोपड़ी का अमल किया है। आप ऐसा करें, सोते वक्त या अली मुअल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा, आप ये पढ़ें, और सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें। और ये मैं सबको इजाजत दे रहा हूं। इस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ ऑनलाइन है और पूरी दुनिया प्रोग्राम देख रही है। तो ये एक तस्बीह जो बंदा सोते वक्त पढ़ ले, और सिर्फ पढ़ ले और रोज पढ़ ले, कुछ ही अरसे के बाद कश्फ, कमालात, दिल के भेद, जमीन के नीचे के भेद, आसमान के भेद, फजाओं हवाओं के भेद अल्लाह पाक उस पे खोल देते हैं, और अल्लाह पाक कायनात के राज उस पे खोल देते हैं, कायनात के राज उस पे अल्लाह खोल देते हैं। उसने ये पढ़ा, और जब ये पढ़ा कहने लगा कि पहली दफा मैंने आंखों से देखा कि ऐसे ऐसे एक मरा हुआ कुत्ता किसी ने उठाया, उसकी गर्दन काटी, उस पे कील डाले, और एक गंदगी रूढ़ी थी, कूड़े का ढेर था, वहां गढ़ा गहरा खोद के उसने वो दबा दिया। मैंने कहा क्या ख्याल है, आपको ख्वाब के बाद भी वो जगह याद रहेगी? कहा 100% याद है। मैंने कहा वो निकालें जाके, लेकिन निकालने से पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ जरूर करें, अपना तहफ़्फ़ुज़ जरूर करें निकालने से पहले। अगर आपने अपना तहफ़्फ़ुज़ ना किया, वो चीजें आप पे आएंगी। और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी आपको बता दूं, वो कुरान पाक की आयत है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये वो आयत है जो आप चिट लगा के अगर दरवाजे पे लगा दें, घर में दाखिल जादू नहीं होगा। सांप, बिच्छू और खतरनाक चीजें अगर आप ये चिट लगा दें कागज पे लिख के, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, छोटा सा फोस्टेड करा के लिख के आप चौखट पे, घर की हर चौखट पे लगा दें, तो आपको खुद महसूस होगा, और आपको इंशाअल्लाह ताला घर में ये चीजें दाखिल नहीं होंगी। मैंने उनसे अर्ज किया ये एक तस्बीह आप पढ़ लें, और वो निकाल के ले आए। खोपड़ी गल चुकी थी और कील जो है वो अभी उनको जंग लगा था,
کہاں گلتے ہیں، موٹے کیل ہیں تو اتنے جلدی تو نہیں گلتے، اتنے جلدی تو نہیں گلتے۔ پھر ان کیلوں پہ عمل کیا، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اب یہ کیل کریں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ کیل کا پہلا عمل میں نے آپ، اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔